So the next topic is the amendment of the constitution. So amendments come under part 20 of the constitution. We have already learnt about the different parts of the constitution. ठीक है, तो पार्ट 20 में अमेंडमेंट आता है आर्टिकल 368. So this is a very famous article, so I don't think that you'll require any trick to remember this. ठीक है, तो इसमें see the amending the constitution of India is the process of making changes to the constitution. और ये फीचर कहाँ से बोरो करा है? साउथ अफ्रीका से. ठीक है, so this is very important that this feature has been borrowed from South Africa. और हमने we have done that in a previous video also कि which of the provisions have been borrowed from which constitutions. ठीक है, so the procedure for amending the constitution is neither flexible nor rigid. It is a mix of both, synthesis of both, and the parliament can amend the constitution. However, it cannot amend certain provisions which form the basic structure of the constitution. ठीक है, तो केशव नंदा भारती केस के अंडर the Supreme Court had said that there are certain core features of the Constitution of India which come under the basic structure of the Constitution. These cannot be altered by the executive or the legislature. ठीक है, और इसकी डेट हमने अभी लर्न की थी. इट इज़ April 24th 1973. ठीक है, and one more important fact which you need to know is that the Article 368, which is related to amendment, has been itself amended by the 24th and the 42nd Amendment Act. ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट आया था ना, जिसमें it is considered to be a mini constitution because there were a lot of changes which were made. So one of the changes which was made was in the Article 368. ठीक है, तो 42nd आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस कर रहे थे तो इसमें भी कर दिया है ना. एंड 42nd का रिवर्स इवन 24th में भी द अमेंडमेंट्स वर मेड टू द आर्टिकल 368. ठीक है, so now we look at the procedure for amendment which is given under article 368. So first of all, the amendment bill has to be introduced in either house of the parliament, and it can be introduced by both a minister as well as a private member. ठीक है, and no state legislature can do so. ठीक है, so first of all, a constitutional amendment can be made by the parliament only. It cannot be made by a state legislature because naturally पूरे country में जो law अगर change करना है तो it can be done only by the parliament. ठीक है, and second important thing is that it can be introduced by a private member also. ठीक है, तो हम प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? समवन हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर. ठीक है, तो हमें लगता है कि नहीं, ओनली द मिनिस्टर्स विल बी द पर्सन्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, द मिनिस्टर्स विल बी द वंस हु विल बी इंट्रोड्यूसिंग an amendment bill. However, that is not true. Any MP can introduce, any member of parliament can introduce a constitutional amendment bill. ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट्स रोल. there's no prior permission required for the introduction of a constitutional amendment bill. ठीक है, so this is important that no prior permission is required. ठीक है, इसको देखो लर्न कैसे करेंगे हम लोग. प्रेसिडेंट को बोला है कि देयर इज नो प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड. सो व्हाई इज इट सो? सी द मेन रीज़न फॉर दिस इज, देखिए मनी बिल अगर लाना होता है तब हमें चाहिए होता है प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन, बिकॉज उसमें द एग्जीक्यूटिव प्लेज अ मेजर रोल, वेयर एज इन द केस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल द लेजिस्लेचर, द इंटायर लेजिस्लेचर मतलब पूरा ही जो पार्लियामेंट है, दैट विल बी प्लेइंग अ मेजर रोल. ठीक है, सो सिंस इट इज़ बीइंग अच्छे से स्क्रूटनाइज्ड बाय द लेजिस्लेचर, दैट इज़ वाई a prior permission from the president is not required. ठीक है, ऐसे एक आप बना लीजिए कि बिकॉज इट इज बीइंग प्रॉपरली स्क्रूटनाइज्ड.
ठीक है। तो लेजिस्लेचर अच्छे से स्क्रूटनाइज करता है, स्पेशली हमें एक तो स्पेशल मेजोरिटी लगती है इन ऑर्डर टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, है ना। सो देर आर स्पेशल प्रोसीजर्स विच आर इन प्लेस, दैट इज़ वाई अ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेजिडेंट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड। और प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे। सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ अ वेरी बेसिक, मतलब वेरी वेरी कोर बेसिक नीड ऑफ द कंट्री, ठीक है। कि अगर जो बेसिक लॉ है हमारे कंट्री का, इफ़ इट इज़ समथिंग्स रॉन्ग विद दैट, इट शुड बी अमेंडेबल, ठीक है। सो एनी, मतलब all of the MPs which are the elected representatives, they should have a right to ensure that a constitutional amendment can be introduced, ठीक है। क्योंकि बेसिक लॉ है इसमें सब, आइडियली एनी सिटीजन शुड बी एबल टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन के ये कुछ गलत लिखा है इसमें, है ना। सिंस वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ वाई एनी MP कैन इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। वो बोल सकते हैं कि ये सही चीज़ नहीं लग रही हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, इट शुड बी चेंज्ड, ठीक है। सो एनी MP, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट है मेजोरिटी नीडेड। सो इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी इन ऑर्डर टू पास इट, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या 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 कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप होना चाहिए, एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यू रिक्वायर अ स्पेशल majority, whereas the other laws, most of the other laws, they can be passed via a simple majority. Simple majority मतलब a majority of the persons present and voting, ठीक है। और इसमें क्या है, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। नेक्स्ट है पैसेज, बोथ द हाउसेज मस्ट पास इट सेपरेटली, ठीक है। सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग व्हेन इट कम्स टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। सो व्हाई इज इट सो, बिकॉज अगर जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन होता है ना, सो दैट इज़ व्हेन जो एग्जीक्यूटिव है हमारी, जो भी गवर्नमेंट है पावर में, लोकसभा में कौन सी गवर्नमेंट विच इज़ इन पावर, दे विल बी हैविंग अ मेजोरिटी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम जॉइंट सिटिंग करते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट द पर्सन्स हु आर इन अ मेजोरिटी इन द लोकसभा, मतलब कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, दे विल बी हैविंग द फाइनल से, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा कि राज्यसभा, समझ रहे हो आप, जैसे अगर जॉइंट सिटिंग करी, तो लोकसभा में जो सारे मिनिस्टर्स तो नहीं, मतलब जो सारा रूलिंग पार्टी है, दैट विल बी इन अ मेजोरिटी, एंड लोकसभा इटसेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ सीट्स, 550 कुछ होती हैं, वेयर एज राज्यसभा हैज़ ओनली गॉट 250 सीट्स, सो ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम मोर एंड दिस विल गेट अंडरमाइंड, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू इंश्योर कि अच्छे से बस रूलिंग जो पार्टी है उसी के पास सारी पावर ना चल जाए, दैट इज़ वाई नो जॉइंट सिटिंग इज़ अलाउड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिकॉज देखो जॉइंट सिटिंग कर देंगे तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है, दैट विल हैव अ लॉट ऑफ पावर, दे विल बी हैविंग द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो अपने विम्स एंड फैंसीज पे कर सकते हैं अमेंड, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड कि नो जॉइंट सिटिंग कैन बी डन, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है amendment of federal provisions. So in order to amend any federal provisions are those which affect the states और सेंटर स्टेट रिलेशंस को कुछ अफेक्ट पड़ रहा है, उनको हम फेडरल प्रोविजन बोलेंगे।
अगर हमें अमेंड करना है, then you'll require a special majority and along with that a state ratification as well. ठीक है, मतलब कि nearly half of the states or more than half of the states should ratify the amendment via a simple majority. ठीक है, so this is again very important. अगर federal provisions are being amended, then special majority plus state ratification comes into play. ठीक है, नेक्स्ट है president's assent. सो अकॉर्डिंग टू द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैंने बताया था ना ऊपर के दिस the article 368 has been amended twice. So first of all it was amended in under the 42nd constitutional amendment act, and after that even in the 24th constitutional amendment act. after that नहीं, मतलब उससे पहले 24th में भी करा हुआ था इसको अमेंड. ठीक है, तो 24 और 42nd में it has been amended. So we look at this president's assent. 24th constitutional amendment में क्या amendment लाए थे? It amended article 368 to provide expressly that parliament has the power to amend any provision of the constitution, and the amendment further made it obligatory for the president to give his assent. ठीक है, तो 24th में बोल दिया था कि it is compulsory for the president to give assent to an amendment bill. ठीक है, so he can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the parliament. So after the president's assent, the bill becomes an act and the constitution stands amended in accordance with the terms of the act. ठीक है, so note article 368 में any constitutional amendment that affects the federal balance must be ratified. ये हमने पढ़ लिया है ना कि state legislatures, half of the state legislatures should ratify the provision, the act, the bill. ठीक है, so इसमें क्या क्या आता है, जो फेडरल प्रोविजंस वाले की एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 7th शेड्यूल में जो लिस्ट्स हैं उसमें अगर कुछ भी चेंजेस करनी है देन यू विल रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी एज वेल एज रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स. ठीक है, अदर दैन दैट और भी कुछ जैसे आर्टिकल 162 है, उसकी कोई प्रोविजंस में चेंजेस करने हैं, ठीक है, उसके लिए भी दिस विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है, और क्या फिर उसके अलावा अगर स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसकी चेंज करनी है देन ऑल्सो यू रिक्वायर अ स्टेट ratification. In contrast to that, certain amendments under certain provisions like Article 158, which deals with governors' conditions of office, need only Parliament's special majority and they do not require state ratification. So this has been asked in the previous in UPSC 2025 preliminary examination. ठीक है, तो ये पूछा था कि ये इसी पे सवाल था स्टेट ratification वाले पे. और दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अगर गवर्नर की कंडीशंस ऑफ ऑफिस चेंज करनी है हमको देन इट कैन बी डन बाय अ सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी. मतलब स्पेशल मेजॉरिटी डज नॉट रिक्वायर एनी स्टेट ratification. ठीक है, सो इस पूरे में दी ओनली इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में द president's assent was made obligatory, ठीक है, टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. सो ही कैन नॉट withhold his assent or and he can also not return the bill for reconsideration by the parliament. ठीक है, so this is again very important, do remember this. So next we'll be doing the type of majorities in parliament. So there are the following types of majorities. ठीक है, we'll have a look see. First of all we have the simple majority, है ना. इसमें majority of the members present and voting चाहिए होता है and it is not considered under article 368. So various examples where it is used are जैसे अभी recently number of Supreme Court judges was increased from 31 to 34 by the Supreme Court Amendment Act. तो उसमें ये simple majority को यूज़ किया था. ठीक है, नेक्स्ट है absolute majority. Majority of the total membership of the house regardless of the vacancies or the absent members. ठीक है, उसको absolute majority बोलते हैं. देन है
I think this is used for president का removal, impeachment of the president, है ना. Next है effective majority. एक second, let me confirm if this is true. ठीक है, इसको वो एक तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं, इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश द रूलिंग पार्टीज लेजिटिमेसी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. जो फ्लोर टेस्ट की बात होती है ना, फ्लोर टेस्ट, है ना, उसके लिए भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज यूज्ड. ठीक है, प्रेसिडेंट का आई एम नॉट वेरी श्योर इफ दिस इज द वन, बट फॉर फ्लोर टेस्ट पर्पसेस, जैसे कि इफ दिस इज द राइट गवर्नमेंट, इफ दे हैव द मेजॉरिटी और नॉट, फॉर दैट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज यूज्ड. ठीक है. इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज द टोटल स्ट्रेंथ माइनस द वेकेंसीज. ठीक है. सो दिस इज प्राइमरली यूज व्हेन द रिमूवल ऑफ द चेयर इज इन क्वेश्चन. रिमूवल ऑफ द चेयर मतलब अगर स्पीकर को हटा रहे हैं या द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज बीइंग रिमूव्ड, only then the effective majority is taken into account. ठीक है. then we have special majority as per article 249. So under this, majority of not less than two-third of the members present and voting is taken. ठीक है. आर्टिकल 249 के अंडर टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. आर्टिकल 368 के अंदर जो है स्पेशल मेजॉरिटी, उसमें क्या होता है, टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव majority of the total membership. मतलब टोटल मेंबरशिप है उसका 50% एटलीस्ट होना चाहिए. ठीक है. सो यू शुड रिमेंबर दिस प्रॉपरली, है ना. और जो आर्टिकल 249 है इसके बारे में देख लेते हैं. बेसिकली इन्वॉल्व्स राज्यसभा empowering the parliament to make laws on a state subject. ठीक है. to legislate ठीक है. तो अगर ये वाला प्रोविजन हैज़ टू कम इन टू प्ले, देन स्पेशल मेजॉरिटी, दिस स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड, जिसमें बस टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, वेराज इसमें ज़रूरत होती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. राज्यसभा में इफ़ द राज्यसभा wants to empower the parliament to make laws on the state subject, only then does this majority come into play, that is two-third of the members present and voting. ठीक है. सिंस दिस इज़ नॉट एज स्ट्रिक्ट, मतलब ये वाला काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि टोटल मेंबरशिप के भी आधे लोग एटलीस्ट होने ही चाहिए, वेर एज दिस इज़ नॉट एज स्ट्रिक्ट. मतलब इसमें बस जो प्रेजेंट हैं जितने भी लोग, उसके टू थर्ड ऑफ द मेंबर शुड बी देयर. ठीक है. सो दिस इज़ लेस स्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू दी वन बिलो. ठीक है. तो अगर लॉ बनाना है किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे, इट इज़ नॉट अ वेरी मतलब इतना भी क्रूशियल मैटर नहीं है एज कम्पेयर टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ अ वेरी क्रूशियल मैटर. दैट इज़ वाई दे रिक्वायर majority of the total membership as well, whereas making laws on a state subject is not as crucial as a constitutional amendment bill. That is why this is less strict as compared to the other one. ठीक है. then we have special majority under article 61. तो इसमें क्या चाहिए होता है, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस दैन टू थर्ड ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. ठीक है. और आर्टिकल 61 क्या रहेगा, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. सो यहाँ पे अगर इम्पीचमेंट करनी है प्रेसिडेंट की, सो इट हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट मेजॉरिटी इन प्लेस. ठीक है. यहाँ पे लिख देती हूँ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. Since this is an extremely crucial matter, therefore it is the most strict.
मतलब इसमें सबसे ज़्यादा टोटल मेंबरशिप का ही 2/3 चाहिए यहाँ पे। बस जो प्रेजेंट थे लोग उसके 2/3 चाहिए था। यहाँ पे द इंटायर टोटल मेंबरशिप का 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट स्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू मी व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट्री प्रोविजंस, है ना। ठीक है, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट सबसे क्रूशल चीज़ है, दैट इज वाई इट हैज़ द मोस्ट स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इन प्लेस। नेक्स्ट लास्ट वाला है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। सो दिस वी हैव जस्ट रेड अबाउट दिस अर्लियर। तो अगर हम कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर में फेडरल प्रोविजंस में इफ यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट एन अमेंडमेंट, देन दिस वन इज रिक्वायर्ड वेर इन स्पेशल majority and along with that ratification of at least half of the state legislatures is required। और जो ratification होगा state legislature में, it can be done via a simple majority only। ठीक है, so most of the federal provisions are amended by this method। so if one or some or all of the remaining states take no action on the bill, it does not matter। The moment half of the states give their consent, the formality is completed। ठीक है, only half of the states need to give a consent, बाकी लोगों ने नहीं भी दिया तो it does not make a difference। ठीक है, and there is no time limit, again this is very important। there is no time limit within which the state should give their consent to the bill। So example of this would be the 101st amendment bill which was regarding goods and services tax। ठीक है, अगेन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि टाइम लिमिट का कुछ नहीं है यहाँ पे सिस्टम। ठीक है, क्योंकि देखो इसको लर्न कैसे करेंगे कि ऐसे स्टेट्स के पास जाएंगे, उनके लेजिस्लेचर का जो अगर वेकेशन चल रहा हो तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो देयर इज़ नो टाइम, कभी भी हो सकता है ना, कि दे शुड बी इन सेशन एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। मतलब हमारे पास 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है ना, एटलीस्ट हाफ ऑफ दीज स्टेट्स शुड बी इन सेशन। फिर वो लोग रैटिफाई करेंगे, रैटिफाई वाया सिंपल मेजोरिटी, सो इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दैट इज़ वाई नो टाइम लिमिट हैज़ बीन गिवन। ठीक है, लर्न करने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, now various provisions and types of majority required। So there are certain provisions which require a simple majority and the others which will be requiring a special majority for constitutional amendment। ठीक है, तो अगर 368 के अंडर कुछ भी है that will be requiring either a special majority or a special majority with state ratification। ठीक है, बाकी जो दूसरे आर्टिकल्स के अंदर है वो they have been given here। So, for example, admission provisions that require a simple majority। So, first of all, we have admission of new states। ये भी normal simple majority से हो जाएगा। Formation and alteration of existing states हो जाएगा। Then second schedule, abolition and creation of legislative councils, quorum in parliament, salaries and allowances of members, rules of procedure, use of English, number of sitting judges, and privileges of Parliament, फिर jurisdiction of the Supreme Court, official language, citizenship, elections, delimitation of constituencies। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिकली जो थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है, दीज कैन बी डन वाया अ सिंपल मेजोरिटी इटसेल्फ। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज, फिफ्थ शेड्यूल एंड द सिक्स शेड्यूल, इन सब में ऑफिशियल लैंग्वेज भी ऐसे ही हो जाएगा, सिटीजनशिप ऐसे ही है, इलेक्शंस भी। jurisdiction of supreme court can also be done by a simple majority। use of english, um, privileges of parliament, ये सारा जो which do not require a very big question of law या कुछ भी crucial matter नहीं है, they can be done by a simple majority। नेक्स्ट है प्रोविजंस दैट रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी। सो एक तो जैसे
anything which comes under Article 368 will be requiring a special majority. ठीक है, तो examples like fundamental rights, directive principles of state policy, and all other provisions which are not covered under the first and third categories. ठीक है, the provisions that require a special majority plus state ratification. ठीक है, तो anything which deals with the federal provisions that will be requiring a state ratification as well. So examples are election of the president, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स. देखो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में एमएलएज प्ले अ मेजर रोल है ना, सो दैट इज बाय स्टेट रैटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. सिमिलरली एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स, तो इट विल नेचुरली रिक्वायर स्टेट रैटिफिकेशन. फिर हाई कोर्ट्स के बारे में कुछ है, उसमें भी चाहिए रहेगा. लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जीएसटी काउंसिल, सेवेंथ शेड्यूल and representation of states in parliament. ठीक है, so anything which is related to the states or their jurisdiction that will be requiring state ratification. ठीक है, उसके बाद there is some criticism regarding the amendment procedure. It is not very important from the prelims point of view, but we'll still see it once. देखो, unlike the USA, Indian states cannot initiate a constitutional amendment, and this authority solely rests with the parliament. When the constitution does not mention the time within which the state legislatures have to ratify or reject the amendment. ठीक है, so it may get prolonged, the entire process may get prolonged for a very long time. ठीक है, so that is one drawback. Then no provision for a special body for amendment. So only in a few cases the consent of the state legislatures are required. Then there's no provision for a joint sitting. Wide scope for taking matters to the judiciary due to vague provisions. ठीक है, सो उसके बाद ये नाइन्थ शेड्यूल आईआर कोयलो केस के बारे में दिया है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, है ना. देखो इसमें क्या हुआ था, नाइन्थ शेड्यूल वॉज क्रिएटेड एज अ स्ट्रॉन्ग शील्ड टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज. ठीक है, but in IR Coelho case, Supreme Court changed this and it was brought under the um, judicial review का provision, um, which was highlighted in the Keshav Nanda Bharti case. तो इसको I'll just give a summary of whatever is given here. देखो क्या हुआ था, I'll be repeating what I said in the earlier video. Ninth schedule was brought via the, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टेल यू, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना, उसके अंदर इसको लाए थे नाइन्थ शेड्यूल को. बेसिकली द गवर्नमेंट हैड वांटेड टू कम अप विद लैंड रिफॉर्म्स बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ लॉट ऑफ inequality in land distribution, unequal land distribution. ठीक है, सो ओनली अ कपल तो नहीं, मतलब वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द ज़मींदार्स दे यूज्ड टू ओन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड. ठीक है, तो जैसे ये एक ज़मींदार है, ही विल बी ओनिंग अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड and on this land a number of tenants would be carrying out agriculture. ठीक है, so in order to get these tenants to have some land rights, है ना, they came up with land reforms. ठीक है, however in the 1950s right to property was also a fundamental right. ठीक है, तो if they had brought out land reforms it would have gone against the fundamental rights. और आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है कि anything which goes against the fundamental rights would be null and void. ठीक है, so they had to amend this portion. ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए थे. उसमें बोला था कि अगर नाइन्थ शेड्यूल के अंदर कुछ भी एक्ट या लॉ बना है दैट विल बी इम्यून फ्रॉम दिस प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13, जिसमें दिया है कि कुछ भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट विल बी अल्ट्रा वायर्स, है ना.
सो दैट इज़ वाई द नाइन्थ शेड्यूल वॉज ब्रॉट इन. ठीक है. तो बस इतना ही हुआ था. एंड उसके अंदर जो भी लॉज आ रहे थे दोज वर immune from, मतलब they could contravene the fundamental rights or the other parts of the constitution as well, and they were immune from judicial review. ठीक है. however, um, आपको पता होगा कि इन IR कोएलो केस which was I think it was in 2009, IR कोएलो केस में सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो नाइन्थ शेड्यूल है इवन दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. उन्होंने वो ब्लैंकेट जो वो था ब्लैंकेट इम्यूनिटी थी दैट वाज रिमूव्ड वाया द आयर कोएलो केस. एंड अंडर इट इट वाज सेड कि जो भी केस है, जो केशव नंदा भारती केस के पहले जो भी एक्ट्स हैं दोज विल कंटिन्यू टू रिमेन अंडर द ब्लैंकेट इम्यूनिटी. हाउएवर एनी एक्ट और लॉ विच केम आफ्टर द केशव नंदा भारती केस दैट कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. तो केशव नंदा भारती केस का डेट क्या था? 24 अप्रैल 1973. ठीक है. तो इससे पहले के ऑल ऑफ द एक्ट्स विच वर अंडर द नाइन्थ शेड्यूल विल continue to remain immune. They cannot come under judicial review, whereas anything which has been added after that will come under the judicial review. ठीक है. सो बस इतना ही था इसमें. So next we'll be doing all the major amendments of the Indian Constitution. So first of all, we look at the first Constitutional Amendment Act. तो ये 1951 में ही आ गया था. 1950 में the Constitution was fully enacted on the Republic Day, and in 1951 itself the first Constitution Amendment was brought in. ठीक है. तो इसमें there were a number of provisions there. So I'll be telling you the important provisions which were present in the first Constitutional Amendment Act. So देखो नाइन्थ शेड्यूल का मैंने पहले भी बताया था. Ninth schedule was added in this act wherein any laws which were made regarding land reforms they were not subjected to judicial review. ठीक है. तो ये वही दिया यहाँ पे. Ninth schedule and article 31A and 31B were brought in which protected land acquisition laws from judicial review. ठीक है. तो they were not subjected to judicial review. Then secondly it empowered the state, जो बैकवर्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए दिस प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन वॉज ब्रॉट इन. ठीक है. सो इट एम्पावर्ड द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है. तो इससे पहले देखो आर्टिकल 14 दिया हुआ था. आर्टिकल 14 में देयर शुड बी इक्वालिटी. हाउएवर दिस provision was brought in to ensure that affirmative action can be taken. Affirmative action मतलब कि something which is done to help the socially and economically backward classes. ठीक है. तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट में ही हो गया था. देन नेक्स्ट क्या हुआ? जो आर्टिकल 19 है हमारा फ्रीडम्स पे है, राइट टू फ्रीडम. उसमें देवर 3 ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्री स्पीच वर एडेड. ठीक है. तो सबसे पहले पब्लिक ऑर्डर को रिस्ट्रिक्ट करने नहीं, इफ़ द फ्री स्पीच रिजल्ट्स इन अ प्रॉब्लम इन द पब्लिक ऑर्डर देन इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है. फिर फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड थर्डली इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. ठीक है. तो इन तीनों ग्राउंड्स पे फ्री स्पीच कुड बी रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है. और इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट आया तो जैसे वंस द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड ऑन इन 1950 काफ़ी सारे लोगों ने दे थॉट कि अब तो हमारी गवर्नमेंट है तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग और हर चीज़ पे से छोटी छोटी चीज़ों पे प्रोटेस्ट हो रहा है और पब्लिक ऑर्डर इज़ गोइंग हेवायर है ना. तो ऐसे सब ऐसे बस सोचने के लिए आई एम गिविंग यू अ मेमोरी एड. ठीक है. तो ऐसी सब चीज़ें होने लग गई. दैट इज़ व्हेन these 3 restrictions to free speech were brought in. फर्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, सेकेंड है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड थर्डली इंसाइटमेंट
टू एन ऑफेंस। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या था, nationalization of businesses became protected against right to trade violations. So basically, under right to life as well as freedom, right to freedom, every person as well as entity organization has a right to carry out trade, है ना, फ्री एंड फेयर ट्रेड करने का राइट है। हाउएवर उस टाइम पे हम हमारा थोड़ा सा सोशलिस्ट लीनिंग थी, सोशलिस्टिक लीनिंग थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एट्सेट्रा, दे वांटेड इंडिया टू बी, मतलब दे वर क्वाइट इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर और उसका जो सोशलिज्म था उससे, है ना। सो दे वांटेड द स्टेट टू कमांड द, or basically they wanted the state to be heading the major companies in the entire India, in the entire country। ठीक है, तो जो मेजर कोर इंडस्ट्रीज थी उसमें स्टेट कंट्रोल लाने की कोशिश करी गई थी। सो देयरफॉर नेशनलाइजेशन वाज डन, बैंक का नेशनलाइजेशन वाज आल्सो डन, एसबीआई वगैरह लाए थे, है ना। एंड साइमल्टेनियसली अ नंबर ऑफ अदर इंडस्ट्रीज वर आल्सो नेशनलाइज्ड। ठीक है। सो दिस नेशनलाइजेशन वुड हैव बीन इन कंटेंशन विद द राइट टू फ्री ट्रेड, मतलब फ्री ट्रेड नहीं, मतलब राइट टू ट्रेड, कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर करके पब्लिक बना रहे हो, इस दैट वुड हैव बीन, दैट कुड हैव बीन कंटेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। ठीक है, तो उसके लिए एक अमेंडमेंट लाए थे कि नेशनलाइजेशन कैन बी डन एंड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द राइट टू ट्रेड, टू ट्रेड। ठीक है, तो यही दिया है यहाँ पे। सो बेसिकली वही जो इनिशियल चीज़ें हैं, एक तो नेशनलाइजेशन करने के लिए वो, उसके लिए दे ब्रॉट एन अमेंडमेंट, देन लैंड रिफॉर्म्स के लिए, देन रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन के लिए, एंड लास्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉज कर्टेल्ड तो नहीं, इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड। 3 रिस्ट्रिक्शंस लाए थे। नेक्स्ट, the next important constitutional amendment is the 7th Constitutional Amendment Act of 1956। ठीक है, इसमें प्राइमरीली 1956 के पहले द country was divided into a number of states and these states were classified into 4 categories, class A, class B, class C and class D। ये वो दिखाया हुआ है। ठीक है, however via this amendment these classifications were removed। ठीक है, so it abolished the complex 4-tier state classification system and it reorganized the nation into 14 states and 6 union territories। ठीक है, तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14। तो अंडर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 14 स्टेट, द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ क्या करी गई, एग्जीक्यूटिव रूल। सो इट द आर्टिकल 153 मैंडेटेड दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। नेक्स्ट है, इट एक्सटेंडेड हाई कोर्ट्स jurisdiction टू यूनियन टेरिटरीज एंड इट ऑल्सो अलाउड अ कॉमन हाई कोर्ट टू सर्व 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, तो हाई कोर्ट के टर्म्स में दे मेड 2 changes। फर्स्ट ऑफ ऑल, the High Court's jurisdiction was extended to Union territories and the provision for a common High Court was also brought in। ठीक है, so all of this was done under the 7th Constitutional Amendment Act। हाई कोर्ट वाला हम कैसे लर्न करेंगे, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लिंक करना है अगर हमको, तो ऐसे ही कर लो। देखो क्या हुआ, वाई वॉज दिस नीडेड, बिकॉज एक तो स्टेट्स 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हो गए थे, है ना। पहले तो दे वर क्लासिफाइड इनटू ABCD ग्रुपिंग और थोड़ा कम्प्लेक्स सा सिस्टम था, बट आफ्टरवर्ड्स दे वर categorized into 14 states and 6 union territories। ठीक है, once these states were formed, तो उनका हमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ गई। सो दैट इज़ वाई ये एक तो गवर्नर का प्रोविजन वाज ब्रॉट और एक ये वाला कि हाई कोर्ट रहेगा एंड हाई कोर्ट विल हैव अ jurisdiction over the union territories as well and a common high court can also exist for 2 or more states। ठीक है, तो एक तो ये स्टेट्स बन गए और उसका जुडिशियल सिस्टम एज वेल एज एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो भी है उसको दे वर सॉर्टेड आउट बाय दिस एक्ट।
ठीक है, नेक्स्ट है द नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो बेसिकली इसमें ये बेरुबारी यूनियन के बारे में है इसमें। सो बेरुबारी यूनियन via the Indo-Pakistan Agreement of 1958, the Berubari Union territory was seceded to वो वाला बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं, उस टाइम पे इट वाज नोन एज पाकिस्तान। ठीक है, सो फॉर्मल सेसेशन of Indian territory, specifically the Berubari Union area located in West Bengal to Pakistan। ठीक है, सो इट वाज गिवन अवे टू पाकिस्तान बिकॉज उन्हीं के टेरिटरी में आ रहा था, तो द एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये इंडिया है, ये अगर पाकिस्तान मतलब तब पाकिस्तान था, अभी बांग्लादेश है। सो बेरुबारी यूनियन विच वाज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट अपना वेस्ट बंगाल, इट वाज हैंडेड ओवर टू seceded टू पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, एंड अग्रीमेंट कौन सा था इसका? इंडो पाकिस्तान अग्रीमेंट ऑफ 1958। ठीक है, सो बेरुबारी यूनियन केस, इसका द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इम्पोर्टेंट एज वेल एज द ईयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे? बेरुबारी यूनियन केस का देखो, जो बी है वो 9 जैसा ही दिख रहा है ना, 9 को ही अगर हम उल्टा कर दें तो बी बन जाएगा। ठीक है, तो उससे कर लो नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 9 से 6 भी बन जाता है तो 1960 का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962। सो अंडर दिस basically Puducherry was officially incorporated into the Indian Union। ठीक है, तमिलनाडु प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है ना, पुडुचेरी उसको ले आए थे, पौंडीचेरी था पहले उसको बोलते थे। दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन। पहले वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज थे। ठीक है, एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन and Diu and Puducherry। So earlier these states, Himachal Pradesh, Tripura, Goa, all of these were union territories, and via this amendment, um, provisions were made for the creation of a legislatures for these union territories। ठीक है, so this is not very important from the exam point of view, but this is quite important। कि Puducherry was incorporated via which constitutional amendment act? So that is the 14th constitutional amendment act। ठीक है, तो ये ईयर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर एंड ईयर आर इम्पोर्टेंट। पुडुचेरी, सो दिस 4 लुक्स लाइक अ पी, है ना, उससे पुडुचेरी लर्न कर सकते हैं, ये ऐसे पी का उल्टा है ये। ठीक है, तो वैसे करके लर्न कर लो कि पुडुचेरी वॉज 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड द ईयर वॉज 1962। आपकी कोई पेरेंट्स का, it's very highly probable that your and at least one of your parent may have been born somewhere around this year। ठीक है, तो वैसे लर्न कर सकते हैं कि आपका कोई पेरेंट होंगे या जो भी 1962 या 64 में बॉर्न होंगे, उससे लिंक करके आप लर्न, उनसे लिंक करके आप लर्न कर लो कि तब इवन पुडुचेरी वाज फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट है 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। तो इसमें बेसिकली इट ग्रांटेड द गवर्नमेंट एक्सपैंडेड अथॉरिटी टू लिमिट फ्री स्पीच एंड असेंबली स्पेसिफिकली इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, तो फ्री स्पीच पे फर्दर रिस्ट्रिक्शंस वर ब्रॉट इन। ठीक है, और even the government was given the authority to impose these restrictions। Apart from that, the required oaths of office were updated, एंड बस ये तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि ओथ्स और अफर्मेशंस को थोड़ा सा अपडेट किया था, दैट इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। दिस इज़ स्टिल इम्पोर्टेंट कि जो फ्री स्पीच पे लिमिटेशंस वर
the authority for imposing limitations on free speech were handed over to the government. ठीक है, तो 1616 ऐसे स्पीच, वैसे करके लिंक करके यू कैन लर्न दिस कि फ्री स्पीच वाज फर्दर लिमिटेड एंड गवर्नमेंट वाज गिवन द पावर टू लिमिट इट। ठीक है, 1963 मतलब वो बोलते हैं ना अनलकी मानते हैं काफ़ी लोग, उससे कर लो कि अनलकी है अगर किसी फ्री स्पीच को गवर्नमेंट ऐसे ही फॉर इट्स ओन यूज़, फॉर इट्स ओन पर्पस, इफ इट स्टार्ट्स लिमिटिंग फ्री स्पीच देन इट विल बी वेरी अनलकी फॉर अस। ठीक है, तो वैसे करके एक लर्न कर सकते हैं इसको 1963 और 16 के एस से स्पीच को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, दिस अलॉन्ग विद द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या था, बेसिकली इट अफर्म्ड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो अर्लियर देखो, अर्लियर क्या, इसके बाद में ही फिर केशव नंदा भारती केस वॉज ब्रॉट इन वेर इन द जुडिशरी सेड दैट कुछ भी द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ एवर इट शुड नॉट affect the basic structure of the constitution. फिर केशव नंदा भारती केस बाद में आया था 1973 में, है ना, तो ये 71 में ये वाली जजमेंट आई एंड केशव नंदा भारती केस केम अबाउट इन अप्रैल 1973। ठीक है, उसमें इसको थोड़ा सा मतलब पूरा तो नहीं, इट वाज इट upheld that the parliament could amend any part of the constitution, however certain restrictions were imposed in the form of बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड रिमेन अनचेंज, उसके अलावा आप कुछ भी आप अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और क्या दिया था, इट मेड it compulsory for the president to give assent to a constitutional amendment bill। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि under the 24th constitutional amendment act provisions were brought in whereby the president had to, it became obligatory for him or her to give assent to a constitutional amendment bill, नहीं तो the president has powers to withhold the bill or return it for reconsideration। ठीक है, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दीज वोंट बी अप्लाइंग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उनको ज़बरदस्ती दे हैव टू गिव असेंट। तो ये दोनों चीज़ें किसके पार्ट है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971। ठीक है, 24th एंड 25th बोथ आर इम्पॉर्टेंट। 24th में हम लर्न कैसे करेंगे, देखो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में आया था एंड इससे क्या लिंक कर सकते हैं हम लोग, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करें ना कि दे कैन अमेंड एनी पार्ट और इसके रिस्पॉन्स में केशव नंदा भारती केस केम इन, इसके रिस्पॉन्स में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिस्पॉन्स में केशव नंदा भारती केस वॉज ब्रॉट नहीं मतलब हुआ था। उसका डेट क्या था, उसका भी 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 अप्रैल 1973। ठीक है, तो ऐसे आपको लर्न हो जाएगा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिस्पॉन्स में 24 अप्रैल 1973 को केशव नंदा भारती केस हुआ था। ठीक है, उसके अलावा वी ऑल्सो हैव टू लर्न प्रेसिडेंट का जो उन्होंने ऑब्लिगेटरी कर दिया था असेंट। सो सिंस दिस इज ऑल्सो अबाउट रिगार्डिंग एन अमेंडमेंट, देखो ये वाला जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ये भी अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है ना, कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है। ठीक है, तो इवन दिस इज रिगार्डिंग एन अमेंडमेंट ओनली।
ठीक है, तो वैसे लर्न हो जाएगा कि दोनों चीज़ें अमेंडमेंट के बारे में दी हैं 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। एंड टू फर्दर रिमेंबर इट प्रॉपरली ऐसे कर लो, 4 क्या ए जैसा दिखता है, लुक्स सिमिलर टू एन ए। ठीक है, तो वैसे और वैसे भी यू कैन लर्न दिस। ठीक है, और ए स्टैंड फॉर अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। इसमें क्या क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट सीवियरली लिमिटेड द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंडली इट प्रोटेक्टेड लॉज एनैक्टेड अंडर आर्टिकल 39B और 39C which were aimed at social good and equitable resource distribution from being challenged in court based on article 14, 19 and 31। तो 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। 19 है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। एंड 31 पहले था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें प्राइमरली जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इट वाज एम्ड एट थोड़ा सा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट या लिमिट किया था इसमें। ठीक है, तो पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी का ही काफ़ी ज़्यादा उसको सीवियरली रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। सेकेंडली जो आर्टिकल 39B और 39C है DPSPs के अंडर, जिसमें बेसिकली इट is regarding equitable resource distribution। तो उसके अंदर बोला था कि if any law is enacted under these provisions that cannot be challenged in the court on the grounds that it is contravening either of these three। ठीक है, तो इसमें बेसिकली DPSPs को फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रख दिया था। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे जो DPSPs हैं 39B और 39C, दे वर गिवन हायर प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही हुआ था, फंडामेंटल राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड। ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। तो हमारा आर्टिकल 25 क्या है? राइट टू रिलीजन के बारे में रहता है ना आर्टिकल 25 वगैरह। राइट टू प्रोपोगेट एनी रिलीजन है ना, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऐसे करके है। तो सिंस दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 इज़ अ फंडामेंटल राइट। बस मैं इसे लिंक के लिए बता रही हूँ कि इसको आप 25 को आर्टिकल 25 से लिंक कर लो। ठीक है, तो आर्टिकल 25 क्या है? विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, so you'll be able to link that 25th Constitutional Amendment Act is also regarding fundamental rights. Next, we look at the 26th Constitutional Amendment Act of 1971. So again, this was also in 1971 itself. तो इसमें क्या था? It was regarding privy purses. So it basically officially abolished the privy purses and all special privileges which were guaranteed to the former rulers of India's princely states, thus marking a major step towards social equality। ठीक है, तो at the time of independence as well as when Sardar Vallabhbhai Patel was trying to get the princely states to join the Indian Union, उन्होंने उनको प्रॉमिस करा था कि यू विल बी गेटिंग अ प्रीवी पर्स। ठीक है, प्रीवी पर्स मिलेगा अंडर विच यू विल बी गेटिंग अ certain sum of money will be given to you regularly, and उसकी जगह पे दे हैव टू एक्सीड टू द इंडियन यूनियन। तो उनको बेसिकली पैसे दे रहे थे वो लोग कि आपको रेगुलरली इतना पैसा मिलेगा
and in return of that please accede to the इंडियन यूनियन. ठीक है, बिकॉज अगर वो लोग अपना प्रिंसली स्टेट नहीं छोड़ते तो उनको वैसे भी टैक्सेस मिलने ही थे अपने टेरिटरी के. ठीक है, तो उन्होंने अपना प्रिंसली स्टेट छोड़ा और गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आए. सो इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट देम फॉर दैट, कॉम्पनसेट करने के लिए दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रीवी पर्स वॉज ब्रॉट इन. ठीक है, तो 1971 में जाके दिस प्रीवी पर्स वॉज ऑल्सो एबॉलिश्ड. ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे. 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो 6 कैसे पर्स जैसा दिख रहा है कोई, है ना. 6 जो है ऐसे पर्स भी ऐसे कुछ होता है. ठीक है, तो उससे लर्न कर लो कि 6 लुक्स लाइक अ पर्स. तो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज रिगार्डिंग प्रीवी पर्सेस एंड देयर अबॉलिशमेंट. नेक्स्ट है 35th एंड द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स. सो ये 1974-75 में लाए थे इनको. These were regarding the integration of Sikkim into the Indian Union. ठीक है, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, एक्ट था. उसके अंडर द प्रोटेक्टोरेट स्टेटस ऑफ सिक्किम वॉज रिमूव्ड. ठीक है, सो पहले वो एक अपना अलग किंगडम था सिक्किम का, बट आफ्टरवर्ड्स दे हेल्ड अ रेफरेंडम देयर वेर इन द सिक्किम के जो पॉपुलेशन था दे हैड voted to abolish the monarchy and join the Indian Union. ठीक है, so that is why the 35th and 36th constitutional amendment were brought in to integrate Sikkim into India. तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें जो प्रोटेक्टोरेट स्टेटस दिया था सिक्किम को, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि वी विल बी प्रोटेक्टिंग योर टेरिटरी, तो आर आर्मी विल हेल्प टू प्रोटेक्ट योर टेरिटरी. सो दैट स्टेटस वॉज रिमूव्ड बाय द 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, एंड इट कॉन्फर्ड द स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट टू सिक्किम. एंड ठीक है, सो और उससे 10th शेड्यूल भी तब लाए थे, बट दिस 10th शेड्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम द वन विच एग्जिस्ट्स टुडे. अभी जो 10th शेड्यूल है दैट इज रिगार्डिंग वो डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉज. ठीक है, और ये वाला जो 10th शेड्यूल तब लाए थे दैट वाज रिगार्डिंग, इट वाज रिगार्डिंग सिक्किम ओनली, है ना. वो सिक्किम के टर्म्स ऑफ एसोसिएशंस के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में था. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट कन्फ्यूज दिस विद द प्रेजेंट 10th शेड्यूल. ठीक है, तो बेसिकली 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में द प्रोटेक्टोरेट स्टेटस ऑफ सिक्किम वॉज रिमूव्ड एंड इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट. whereas 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर सिक्किम वॉज मेड अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड वही 10th शेड्यूल हटा दिया. आफ्टरवर्ड्स द न्यू 10th शेड्यूल वॉज रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, ये वाला पहले वाला जो 10th शेड्यूल था दैट वॉज रिगार्डिंग वही सिक्किम के टर्म्स ऑफ कंडीशंस अपॉन विच इट वुड एसोसिएट विद इंडिया. ठीक है, ये भी हटा दिया. तो ये हम लोग लर्न कर लेंगे 35th एंड द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर रिगार्डिंग सिक्किम. ठीक है, तो इसको लर्न कैसे कर सकते हैं हम लोग. 35 और 36, तो 35 को 3 और 5 जैसे लिख सकते हैं. 5 लुक्स लाइक एस, है ना, और 3 किस जैसा दिखता है, आई. तो इसको कंबाइन करके वही सिक्किम. ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975. सो बेसिकली इसमें क्या किया, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन 2019 UPS prelims as well. So it placed the election disputes of the president, vice president, prime minister and speaker of the Lok Sabha
completely beyond the scrutiny of the Indian courts. ठीक है, तो पहले द इलेक्शन, ये बेसिकली वो इंदिरा गांधी जी पे केस हो गया था ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि हर इलेक्शन वाज कंटेस्टेड, बोला था कि करप्शन के वजह से शी हैड गॉटन इलेक्टेड. सो दिस वाज अ फेमस केस, राज नारायण केस भी बोलते हैं. ठीक है, उनका इलेक्शन वाज कंटेस्टेड इन द कोर्ट्स. ठीक है, दैट इज़ व्हेन दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन. उसमें बोला उन्होंने कि the elections of president, vice president, prime minister and speaker are beyond the scrutiny of the Indian courts. ठीक है. So, ठीक है, ये वही बोला था उन्होंने कि 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन सब का आप दे कैन नॉट बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द इंडियन कोर्ट्स. हाउएवर जो राज नरेन केस हुआ था फिर, है ना, उसमें दिस पोर्शन ऑफ द अमेंडमेंट वाज रिमूव्ड. ठीक है, तो उन्होंने कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन. ठीक है, सो दैट इज वाई दिस पोर्शन ऑफ द अमेंडमेंट वाज रिमूव्ड. ठीक है, एंड इसी के रिस्पॉन्स में वो आया था केशव नंदा भारती, वो सब भी इसी के बाद में ही हुआ है. सो ऑल ऑफ दीज वर लिंक्ड विद ईच अदर. ठीक है, सारे केसेस जो हैं, केसेस और अमेंडमेंट्स हैं, दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर. इवन द 24th वन इज लिंक्ड टू केशव नंदा भारती केस. ठीक है, तो इसमें जो जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल है दैट वाज अपहेल्ड एंड बोल दिया था कि दिस विल नॉट अप्लाई, दिस पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. अभी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज कंसिडर्ड, दिस वाज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस थे. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट वाज सो कॉम्प्रिहेंसिव. बहुत सारा चीज़ें अमेंड किया था, दैट इज़ वाई दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. इसका हम लोग ने, अच्छा हाँ, ईयर नहीं लर्न, ये नहीं करा ना. देखो 39, 30 और 9, 3 और 9 दोनों, देखो 3 वैसे ही अनलकी मानते हैं, है ना, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो बिल्कुल अनलकी हो जाएगा 3 एंड 9. ठीक है, सो अनलकी क्यों है, बिकॉज इट ट्राइड टू, ये जो इनके इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह का इलेक्शन है, दैट वाज ऐसे ट्राई करा था कि दैट शुड बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, अगर ये सच हो जाता तो इट वुड हैव बिकम वेरी अनलकी फॉर द इंडियन पॉपुलेशन, क्योंकि अ लॉट ऑफ करप्शन वुड हैव, मतलब उसको इंसेंटिव मिल जाता सब लोगों को कि हाँ करप्शन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते जा रहा है ना. सो थैंकफुली इन द राज नरेन केस दिस वाज स्ट्रक डाउन. ठीक है, तो वैसे करके आप लर्न कर लो कि 39 बहुत अनलकी अमेंडमेंट है ये. इसमें प्राइम मिनिस्टर और इन सब का जो इलेक्शन है दैट वाज, दे ट्राइड टू पुट इट बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ इंडियन कोर्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट 42nd का हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट दिस. इसमें सबसे पहले क्या है, इट इंसर्टेड 3 न्यू वर्ड्स इनटू द प्रियम्बल. सो क्या क्या वर्ड्स ऐड करे थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. ठीक है, ISS कर लो इज. ठीक है, सोशलिस्ट मतलब वही सोशल लीनिंग है, स्टेट इज कंट्रोलिंग द इकोनॉमी. ठीक है, इट इज़ प्राइमरली कंट्रोलिंग एज वेल एज हेडिंग द इकोनॉमी. और सेक्युलर होता है कि इक्व डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स. ठीक है, एंड इंटेग्रिटी मतलब पता है, इंटेग्रल, इंटेग्रिटी इज बेसिकली अ मॉरल टाइप ऑफ वैल्यू, है ना.
तो उसकी बात हो रही है, और ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की भी बात हो रही है इसमें, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ठीक है, सो ये तीन वर्ड्स वर एडेड. Then it added a completely new section, that is part 4A, that is the fundamental rights, and these were added on the recommendation of the Swan Singh committee. ठीक है, so this is important. Swan Singh committee recommendations, उसके अंडर fundamental duties were added into the constitution. नेक्स्ट और क्या क्या प्रोविजंस थे इसके, DPSPs काफ़ी सारे ऐड कर रहे थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में. सो सम ऑफ द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच वर एडेड वर ये. सबसे पहले तो वही हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 वॉज एडेड. देन equal justice and free legal aid, article 39A. Then workers participation in management of industries, article 43A was added. और लास्ट में एक environment और wildlife protection पे article 48A है, that was also added. ठीक है, so 4 directive principles of state policies were also added by the 42nd constitutional amendment act, and it delayed delimitation of constituencies under the 2001 consensus. नहीं, सेंसस. अच्छा, ये भी मैं आई कम बैक टू दिस, वेट अ सेकेंड. इसमें मैं वही बताना भूल गई आपको, जो ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कब आया, 1975 में. तो इसको राज नरेन केस ने अपोज क्यों किया, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये मैं बताना भूल गई ना. वैसे मैंने बताया था कि ये उससे डिराइव किया है, इसको केशव नंदा भारती केस से डिराइव किया है. So they struck down this provision because it was against the basic structure of the constitution. और basic structure क्या था according to them? The concept of judicial review formed the basic structure of the constitution. ठीक है, तो इसलिए उसको स्ट्राइक डाउन किया था. ये हुआ 1975 में, और केशव नंदा भारती केस कब हो गया था, 1973 में ही. ठीक है, तो उसके बाद ही हुआ था. दैट इज़ वाई दे वर एबल टू स्ट्राइक दिस डाउन. उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू तो आप ऐसे कर ही नहीं सकते, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. तो आप यू कैन नॉट डू दिस के इट इज़ बियॉन्ड द इलेक्शन ऑफ सर्टन पोस्ट्स बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ इंडियन कोर्ट. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, नाउ वील गो बैक टू दिस, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो इसमें क्या हुआ, द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इज दिस, कि जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होते रहती थी उनको डिले कर दिया गया. सो इट वाज फिक्स्ड या फ्रोजन बोल सकते हैं until the 2001 census. ठीक है, and why was this done? In order to ensure population control. ठीक है, जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज थी दैट वाज डिलेड. And next क्या था, it made it an absolute obligation for the president to follow the cabinet's advice. ठीक है, so this is also important. This was also done under the 42nd Constitutional Amendment Act. I do not think that you will require any tricks to learn the provisions of the 42nd Constitutional Amendment Act because it is quite famous. ठीक है, ये सब पता ही होगा आपको कि ये सब चीज़ें हुई थी उसमें. और बस ये आर्टिकल नंबर्स याद कर लो एंड यू माइट बी नोइंग द DPSPs, तो ये अपने आप लर्न हो जाएंगे. जो भी 39, 39A and 43A and 48A, these 4 were brought in via the 42nd Constitutional Amendment Act. ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं. 42nd हो गया ना अभी. नेक्स्ट 43rd Constitutional Amendment Act देख लेते हैं. दिस केम अबाउट इन 1977. सो बेसिकली जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 42nd Constitutional Amendment एक्ट लाए थे ना 1976 में,
उसमें काफ़ी सारे जुडिशरी के पावर्स वर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है. So afterwards the new government brought this act, and under this the various powers of the judiciary were restored. ठीक है. तो 42nd के बाद स्ट्रेट बात 43rd में, when the जनता गवर्नमेंट had come in, उन्होंने जुडिशरी के सारे जो पावर्स जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो भी हटाए थे, दोज वर रिस्टोर्ड बाय दिस एक्ट. ठीक है. So they were certain examples of this is these are: high courts were restored as principal civil courts of original jurisdiction in states and union territories. Similarly, jurisdiction to declare any central law was constitutionally invalid. मतलब basically judicial review का जो provision था, that was also restored. ठीक है. सो ये जो 42nd में जो भी किया था उसको रिवर्ट बैक, इट वाज रिवर्टेड बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है. 43rd में ऐसे किया. इवन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी ऐसे किया था उन्होंने. काफ़ी सारे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजंस लाए थे उनको फिर से हटा दिया गया. ठीक है. दिस वाज डन बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट. सो 44th में क्या क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो emergency which was declared earlier, it had seen a lot of contravention of various fundamental rights, or many leaders were imprisoned unnecessarily. ठीक है. So various safeguards were brought in via the 44th Constitutional Amendment Act. ठीक है. तो इसमें बेसिकली क्या क्या करा था? इमरजेंसी कब से कब तक थी? 1975 से 77 के मार्च तक. ठीक है. तो अ लॉट ऑफ मतलब फंडामेंटल राइट्स वर कॉन्ट्रावीन्ड इन ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है. तो और इसका कोई एज सच मेन कोई भी रीज़न नहीं था इसको इम्पोज करने के लिए. ठीक है. देर वर ओनली पॉलिटिकल रीजन. इट वॉज अज्यूम्ड कि बहुत पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से दिस वॉज ब्रॉट इन. ठीक है. सो दैट इज़ वाई an amendment was made in the constitution में earlier there were certain grounds which were given for imposing an emergency. तो क्या क्या grounds थे? एक तो था war, external aggression और internal disturbance. war, external aggression या internal disturbance. ठीक है. तो वहाँ पे उस टाइम पे 1975 में जेपी मूवमेंट कुछ भी चल रही थी, उसको दे टुक इट एज एन एक्सक्यूज टू इम्पोज इमरजेंसी. ठीक है. उन्होंने बोला कि ये तो एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है, सो दैट इज़ वाई दे इम्पोज इमरजेंसी. ठीक है. सो वाया द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये वाला जो प्रोविजन था इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला, इसको हटा दिया गया. एंड इंस्टेड ऑफ दिस द प्रोविजन वॉज मेड कि आर्म्ड रिबेलियन अगर हो रहा है कंट्री में, ओनली देन कैन एन एमरजेंसी बी इम्पोज्ड. ठीक है. बिकॉज ये काफ़ी वेग टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर misuse. So that is why this term was removed, and instead of this the term armed rebellion was brought in. ठीक है. सेकेंडली, एमरजेंसी का जो अप्रूवल प्रोसीजर था दैट वाज स्ट्रेंथन्ड, उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया. सो अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट, द कैबिनेट हैड टू गिव अ रिटन रिकमेंडेशन टू द प्रेजिडेंट बिफोर इम्पोजिंग एन एमरजेंसी. ठीक है. बिकॉज बाद में जो काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है ना, उनमें बताया है कि उस टाइम का जो 1975 के टाइम का कैबिनेट था ना, उसमें देवर मैनी मिनिस्टर्स हु वर नॉट नोइंग के एमरजेंसी इम्पोज कर दिए. उनको जब एमरजेंसी इम्पोज कर दी थी उसके बाद में पता चला कि अच्छा
नेशनल इमरजेंसी कर दी गई है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई अगेन दिस प्रोविजन वॉज ब्रॉट इन वाया द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, हाँ, आर्टिकल 20 एंड 21 could not be suspended during national emergency। ठीक है, तो आर्टिकल 20 किस चीज़ पे है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन। ठीक है, और 21 है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो इन दोनों को these cannot be suspended during a national emergency। This provision was also brought in because ये 1975 वाली जो इमरजेंसी थी, इसमें उन्होंने सारे फंडामेंटल राइट्स को वो कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। एंड अ नंबर ऑफ लीडर्स, जो ऑपोजिशन पार्टी के काफ़ी सारे लीडर्स थे, दे वर पुट इन जेल। ठीक है, विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आर्टिकल 20 a new amendment was brought via the Janata Party government, wherein they introduced the fact that Article 20 or 21 will not be suspended during a national emergency। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। इसका ईयर भी आप याद रखना, 1978 में हुआ। जैसे ही 77 में जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हुई, देन इलेक्शंस टुक प्लेस एंड न्यू गवर्नमेंट केम इन पावर, है ना। तो उन्होंने एक तो 43rd वाला अमेंडमेंट लाए एंड 44th अमेंडमेंट भी वो लेके आए। फिर अभी 52nd का देख लेते हैं। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। दिस इज़ रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। सो डिफेक्शन क्या होता है? बेसिकली कोई भी एमपी, वंस ही बिकम्स एन एमपी फ्रॉम अ सर्टन पार्टी, जैसे अगर कांग्रेस का कोई भी एमपी है, वो पावर में है, बट वंस ही रीचेस द पार्लियामेंट, ही सीज के अरे बीजेपी में ज़्यादा मेरे को लुक्रेटिव पोजीशन मिल रही है, तो मेरे को मिनिस्टर बनाने का भी वो लोग कह रहे हैं। सो दिस एमपी वुड, वो क्या करते थे, दे यूज टू चेंज द पार्टी वंस दे गॉट इलेक्टेड। ठीक है, सो दैट इज़ वाई द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज ब्रॉट इन, वेयर बाय if an MP or MLA defects, they will be disqualified। ठीक है, तो ये रूल था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs and MLAs ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, एंड along with this the 10th schedule of the constitution was also added, which is regarding the anti defection law। ठीक है, और फिर इसमें पार्टी स्प्लिट के लिए कोई कोई एक्सेप्शन भी होता है। तो मतलब अगर 2/3 या ऐसे कुछ है कि इफ 2/3 ऑफ द पार्टी डिफेक्ट्स, सो दैट दिस डज नॉट अप्लाई। ठीक है, सो ये सब, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, it is regarding वही 10th शेड्यूल, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? देखो, 52nd 10th शेड्यूल तो आपको याद होगा, मैंने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके लर्न कराया था, है ना। सो जो 10th शेड्यूल इज रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो 10 क्या कैसे आता है? 5/2 से, तो 52nd ऐसे लर्न हो जाएगा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और जो 2 है, इसका क्यूब कर देंगे अगर, तो हमको 8 मिल जाएगा, तो 85th भी ऐसे लर्न हो जाएगा, 1985। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर 1985, 52nd एंड 10th शेड्यूल। नेक्स्ट देख लेते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस was brought in 1989। So basically, it reduced the voting age from 21 to 18 years of age। ठीक है, and it applies to Lok Sabha and state legislative elections both। तो पहले कितना था? 21 years of age था वोटिंग एज, वेयर देन इट वाज रिड्यूस्ड टू 18 years of age। ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? 61, 21 से 61 लिंक हो जाएगा, है ना। 2 × 3 से 6 आ जाता है ना, 2 × 3 से 6 आ जाएगा, तो 61। और 1989 कैसे लर्न करेंगे हम लोग? वही 9 इज़ अनलकी, मतलब अगर
ऐसे छोटे छोटे बच्चे 18 ईयर्स के बच्चों को ही दे वर गिवन पावर टू वोट, सो दैट इज़ नॉट वेरी, मतलब ऐसे ही बस लिंक करने के लिए मैं बोल रही हूँ, वैसे तो इट इज़ अ गुड प्रोविजन, बट स्टिल ऐसे लर्न करने के लिए आप सोच सकते हो कि काफ़ी अनलकी हो जाएगा, इन लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है ना, तो ऐसे किसी को भी इलेक्ट करते रहेंगे सो इट विल बिकम अनलकी। तो 1989 9 काफ़ी लोग अनलकी मानते हैं ना, 3 का मल्टीपल है, तो वैसे करके लर्न कर सकते हैं 1989 और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। दिस इज रिगार्डिंग दिल्लीज स्पेशल स्टेटस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली was designated as नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, और उनका एक लेजिस्लेटिव असेंबली was also established, a 70 member legislative assembly was established and a council of ministers was also brought in, 7 member council of ministers। ठीक है, तो नाम क्या बना दिया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट है ये तो आई डू नॉट थिंक यू विल रिक्वायर एनी ट्रिक टू लर्न दिस, 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, ये सबको ही पता होता है। दीज आर रिगार्डिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 वाज रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड द पंचायती राज सिस्टम एंड रूरल गवर्नेंस सिस्टम्स, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। And a part 9 of the constitution was added which was titled the panchayats। ठीक है, simultaneously the 11th schedule was also added जिसमें 29 functional items were present। ठीक है, तो ये हमने we have already learned all the parts as well as the schedules of the constitution। ठीक है, तो ये उसमें you can refer to that video। एंड तो ये हो गया 73rd और 74th भी साथ में लाए थे। दिस गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज एंड पार्ट 9A टाइटल्ड द म्यूनिसिपैलिटीज वाज ब्रॉट इन, और 12th शेड्यूल भी ले आए थे इसके अंडर विच कंसिस्टेड ऑफ 18 फंक्शनल आइटम्स। नेक्स्ट है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। इसमें क्या करा था, बेसिकली आपको अब याद होगा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, अच्छा यहाँ पे नहीं है, उसमें बेसिकली वो एक किया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दी डिलिमिटेशन वाज एक्सटेंडेड या पोस्टपोन्ड टिल 2001। ठीक है, और फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल में इसी को आप इंटू 2 कर दो तो कितना बन जाएगा 84th, है ना, 42 इंटू 2 क्या हो जाएगा 84। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया, फर्दर इट द बैन वाज एक्सटेंडेड, इट एक्सटेंडेड द बैन ऑन रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स फॉर अनदर 25 ईयर्स। ठीक है, तो 2026 तक द बैन वाज एक्सटेंडेड। ठीक है, सो व्हाई वाज दिस डन, अगेन दिस वाज आल्सो डन फॉर, इट वाज अ पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर। ठीक है, तो ये ऐसे लर्न हो जाएगा। 42nd में पहले करा था पोस्टपोन, फिर 84 इंटू 2 करके 84 में और एक्सटेंड कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। नेक्स्ट है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 विच इज रिगार्डिंग द राइट टू एजुकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंडर a fundamental right, a DPSP as well as a fundamental duty were introduced। तो 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी थी। एक तो आर्टिकल 21A that is right to elementary education, it was made a fundamental right। then DPSPs, article 45 was brought, and fundamental duties a new fundamental duty regarding education was also brought in। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ किस में हुई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसको हम लर्न कैसे करेंगे, 86 तो 6E जैसा दिख रहा है ना, ई को अगर हम इन्वर्ट कर लें तो वो बन जाएगा 6 बन जाएगा, तो एजुकेशन, ई से एजुकेशन। ठीक है, और जो इन्फिनिटी है देखो
एजुकेशन इज इनफाइनाइट, तो वैसे करके लर्न कर लो। 8 कैसा दिख रहा है, इन्फिनिटी के सिंबल जैसा दिख रहा है ना, तो एजुकेशन इज इनफाइनाइट। ठीक है। और ये 2002 को कैसे लर्न कर सकते हो, 2002 मतलब 2 years की एज से चिल्ड्रन शुड स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, बस ये आई हैव जस्ट गिवन सर्टन लर्निंग कनेक्शंस फॉर हेल्पिंग यू टू लर्न दिस। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, एक तो जो 86 दिया है उसको हम लोग, उसका जो 6 है वो ई जैसा दिख रहा है, सो एजुकेशन उससे हो जाएगा। और जो 8 है, 8 लुक्स लाइक द सिंबल फॉर इन्फिनिटी, तो एजुकेशन इज इनफाइनाइट करके वैसे लर्न कर लो। और 2002 जो ईयर है, यू कैन लिंक इट विद ये वाला निमोनिक के 2 years की एज वाले बच्चों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो वैसे करके यू कैन लर्न दिस। नेक्स्ट है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003। This was regarding the empowerment of specialized commissions. तो नेशनल कमीशन फॉर SC और ST के बारे में था। It was bifurcated into two separate bodies, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो दो बना दिए गए थे। Earlier a single body used to exist, but via the 89th Constitutional Amendment Act of 2003, they were divided into NCSC and NCST। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे, 89 9 किसके जैसा दिख रहा है, डी जैसा दिख रहा है ना, तो डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड। सो बेसिकली द NCSC वॉज डिवाइडेड इंटू वही NCSC एंड NCST को मतलब डिवाइड बाइफर्केट कर दिया, दो सेपरेट बॉडीज बना दी गई। ठीक है, सो यू कैन लर्न दिस दैट वे। नेक्स्ट है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। सो दिस इज रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो इसमें भी अगेन एक तो फंडामेंटल राइट्स में एक ऐड कर दिया गया कि राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट वाज एडेड इन द फंडामेंटल राइट्स। अलॉन्ग विद दैट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज आल्सो एडेड, 43B है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, so it added a directive principle for promoting cooperatives। ठीक है, एंड फिर क्या पार्ट 9B, that is regarding cooperative societies was also added। ठीक है, इसमें वही याद रखेंगे हम लोग। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट इज़ रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट और राइट टू, आर्टिकल 19 में इसमें ऐड करा था राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, और DPSPs में आर्टिकल 43B वॉज एडेड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट 9B वॉज ऑल्सो एडेड विच वॉज रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसका एक अपडेट है 2021 का। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन पार्ट 9B फॉर स्टेट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, so however it upheld it for multi-state cooperatives। ठीक है, सो पार्ट 9B डज नॉट अप्लाई टू स्टेट कोऑपरेटिव्स अभी। और इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे 97th को, सो आई हैव गिवन अ ट्रिक ओवर हियर। देखो 100 - 3 करके 97 आता है, और जो 3 है, 3 मतलब थर्ड लेटर क्या है अल्फ़ाबेट का, C। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग C मतलब कोऑपरेटिव्स। ठीक है, 100 - 3 करके यू कैन रिमेंबर दिस, थर्ड लेटर को माइनस कर दिया, दैट इज C को। ठीक है, सो 97th हो गया है अभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज़ द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस वाज ब्रॉट आउट इन 2014। ठीक है, तो दिस वाज रिगार्डिंग द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ठीक है,
इसमें क्या करा था बेसिकली, हमारा अभी कोलिजन सिस्टम चलता है। सो क्या होता है इसमें, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनका एक ग्रुप रहता है 4 जजेस का, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। These are the judges who will be appointing the other judges of the Supreme Court as well as the High Court। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स जो होते थे जुडिशरी के, दे वर डन बाय द कोलिजियम, अभी भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, however an NJAC was brought in via the 99th Amendment Act, wherein judicial representation तो था ही, along with that the executive also had certain representation। ठीक है, तो ये NJAC लाए थे, बट लेटर ऑन दिस अमेंडमेंट वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो दैट इज़ वाई अभी भी कोलिजियम सिस्टम इज इन प्लेस। ठीक है, तो ये आप बस ट्राई टू रिमेंबर दिस 99th अमेंडमेंट एक्ट कोलिजियम सिस्टम के रिगार्डिंग है, एंड दिस वॉज स्ट्रक डाउन लेटर ऑन। 99th वही फिर से वैसे लर्न कर लेंगे, 3 into 3 से 9 बनता है। सो वेरी वेरी अनलकी, सो इट वॉज सो अनलकी दैट दे हैड टू स्ट्राइक इट डाउन। ठीक है, एंड दिस हैज़ बीन आस्क्ड वंस इन UPSC 2019 में, एक बार पूछ चुके हैं इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं 100th Amendment Act। So basically 100th Amendment Act was regarding the land swap agreement, between India and Bangladesh। ठीक है, इसको आप उससे लिंक कर लो, बेरू बारी यूनियन केस से, है ना। वहाँ पे भी लैंड स्वैप हुआ था उस टाइम, उसमें पाकिस्तान के साथ लैंड स्वैप किया गया था, whereas in this one लैंड स्वैप इज between India and Bangladesh। सो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको। इट असली में क्या था, इंडिया में देयर वर अ लॉट ऑफ कॉलोनीज, इवन विद इन इंडिया एज वेल एज विद इन बांग्लादेश देयर वर अ लॉट ऑफ कॉलोनीज। तो जैसे ये इंडिया है, ये वाला पोर्शन, अगर हम लोग इंडिया मानेंगे इसको, ब्लू वाला पोर्शन, तो उसमें ये जो रेड पोर्शन है उसको आप ग्रीन से कर लो, ये वाला बांग्लादेश है। ठीक है, तो विद इन इंडिया देयर वर सर्टेन कॉलोनीज ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, एंड सिमिलरली विद इन बांग्लादेश देयर वर सर्टेन कॉलोनीज ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, यहाँ पे ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल था, एंड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। दैट इज़ वाई इन्होंने क्या किया, वी केम अप विद द लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट वेर इन दीज टेरिटरीज वर मेड अ पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। और सिमिलरली ये वाला जो टेरिटरी था, ये बांग्लादेश को ही हैंड ओवर कर दिया, देन दे बिकेम अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल that was there in this agreement। They officially resolved the historical boundary disputes between the two nations। ठीक है, तो 100, आप 100 को ऐसे लिंक कर लो, 100 मतलब 100, तो ये दोनों पीसेस ऑफ लैंड, ऐसे ही सोच लो, लिंक करने के लिए मैं बोल रही हूँ। ये इंडिया का लैंड है और ये बांग्लादेश का, और इसके बीच में देयर वाज अ स्वैप। ठीक है, वैसे यू कैन लिंक 100 विद दिस अमेंडमेंट। नेक्स्ट है 101st अमेंडमेंट, इट इज रिगार्डिंग GST। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, you might be knowing this, I don't think that you'll require any learning aid for this। So it introduced the goods and services tax, and it was introduced in India starting 1st July 2017। ठीक है, तो 1st जुलाई और 101 है, तो 1 लुक्स लाइक T, तो टैक्सेस के रिगार्डिंग है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो बेसिकली 102 किसके रिगार्डिंग था, NCBC के रिगार्डिंग। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो इट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस
and it also inserted Article 338B in the Indian Constitution. ठीक है, और इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? तो टू से लर्न कर लो। जैसे कि फर्स्ट तो नॉर्मल जो हमारा पॉपुलेशन है ही, और टू कौन हो जाएगा? द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, वो सेकंड आ गए, मतलब बाकी लोग सारे फर्स्ट आ गए एंड जो बचे हुए लोग सेकंड आ गए, तो उससे हम लोग 102 का 2 लर्न कर सकते हैं। वी कैन लिंक दैट विद एनसीबीसी। ठीक है, नेक्स्ट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेते हैं। दिस इज रिगार्डिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशंस। ठीक है, सो इट प्रोवाइडेड द मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, and it introduced Article 15 Clause 6 and 16 Clause 6, and it was upheld by the Supreme Court bench via 3:2 majority. ठीक है, इसमें आप बस ये चीज़ याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इट एक्सक्लूड्स माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस, देयरफॉर माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस में उसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? इट इज़ वेरी सिंपल। 3 कैसा दिखता है? ई जैसा दिख रहा है ना, तो ई से ई डब्ल्यू एस हो जाएगा, सो दिस इज ईजी टू लिंक। नेक्स्ट देख लेते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस इज रिगार्डिंग, इसमें दो चीज़ें करी गई थी प्राइमरीली। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एंग्लो इंडियन के लिए पार्लियामेंट लोकसभा में रिजर्वेशन था, देवर 2 सीट्स विच वर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस। ठीक है, 2 सीट्स ऑफ लोकसभा वर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस, दैट वाज रिमूव्ड। ठीक है, अभी देर आर नो लॉन्गर एनी सीट्स रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस इन दी लोकसभा। ठीक है, तो ये कर दिया। It discontinued special representation for the Anglo-Indian community in the parliament. Secondly, it also extended reservation of seats for SCs and STs in Lok Sabha and state assemblies. So, if you might be knowing, this has to be done every 10 years. हर 10 साल में ये हमें extend करना पड़ता है, because the validity for reservation is only 10 years. ठीक है, तो ये आप याद रखना, दिस वॉज अगेन एक्सटेंडेड, सो दिस इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट, बट दिस पोर्शन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन वॉज डिसकंटिन्यूड। ठीक है, और इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? 104 का 4 लुक्स लाइक ए, तो उसको आप एंग्लो इंडियन से लिंक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, सो दिस इज रिगार्डिंग जो ओबीसी और एससीबीसी की जो लिस्ट्स बनती है ना, सेंट्रल लिस्ट से स्टेट लिस्ट, उसके रिगार्डिंग है। सो बेसिकली इट exempted state governments from consulting NCBC when preparing and maintaining their own lists of socially and educationally backward classes. ठीक है, और इसको लर्न करने के लिए वही 105 है, 5 looks like S है ना, तो उससे SCBC लर्न हो जाएगा। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट्स हैं उसको मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है, दैट इट एग्जेम्प्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम कंसल्टिंग एनसीबीसी फॉर प्रिपेयरिंग देयर लिस्ट्स ऑफ एससीबीसीज। नेक्स्ट है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2023। दिस वाज ऑफ 2021, ये 2023 का है। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस। इसमें वुमेन के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया था पार्लियामेंट में। It has reserved 1/3 seats in the parliament have been reserved for women MPs. ठीक है, so it applies to Lok Sabha, state legislative assemblies and National Capital Territory of Delhi Assembly. ठीक है, and this also includes seats which have been already reserved for SCs and STs. मतलब जो 1/3 है वो पूरी सीट्स का रहेगा। दिस विल बी इंक्लूडिंग सीट्स विच हैव बीन रिजर्व फॉर SCs and STs एज वेल। ठीक है, ऐसे नहीं कि बची हुई सीट SC ST का हटा के फिर जो बची सीट्स है उसका 1/3 विल बी फॉर वुमेन, ऐसा नहीं है। द इंटायर
टोटल जितनी सीट्स होती हैं उसका 1/3 विल बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। ठीक है, तो लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और एनसीटी मतलब दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी। ठीक है, पुडुचेरी का शायद इसमें नहीं इंक्लूडेड है, जस्ट चेक दैट वंस, है ना। तो लोकसभा का है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का है, दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली का भी है। ठीक है, डू रिमेंबर दिस। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। अमेंडमेंट्स में बस इतना ही रहेगा। ठीक है, these are the most important amendments which are important from the exam point of view.